अपना क्लासेस नहीं है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे डेयरी डेवलपमेंट में नेशनल एनडीडीबी के बारे में, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो अभी मैं क्या करती हूँ, एनडीडीबी का जो है वो बात करने मतलब उसके एक्सप्लेनेशन से पहले एक एनडीडीबी का एक वीडियो है, देख लीजिए। ओके। It began right here in Anand in 1946. Kheda district's dairy farmers, angered by exploitatively low prices of milk paid by the local private dairy, sought Sardar Vallabhbhai Patel's counsel. The Sardar advised them to unite and form a cooperative. Only then would they have control over their resources. Two villages came together to form a cooperative union under the leadership of Tribhuvandas Patel. The Bombay government refused to register the union. The farmers did the unthinkable. They went on strike. "15 days of milk drought later, the Bombay government buckled. Cooperation had proved its mettle. India's first milk cooperative, Kheda Union, was born. By 1964, this small milk cooperative had become a movement. That same year, Prime Minister Lal Bahadur Shastri chose to spend a night in a village in Anand to understand the transformative power of this farmer-owned institution. Realizing the potential of cooperatives in the development of rural India, he established the National Dairy Development Board, NDDB, to spread the spirit of Anand throughout the country. Dr. Varghese Kurian was asked to lead NDDB in its mission. Thus, NDDB came into being to spearhead the journey that would change the landscape of rural India through dairy. But how can the spirit of Anand be multiplied? It required funds. It required skilled manpower. It required patience and resilience. But most of all, it required a vision. The vision was Operation Flood, launched in 1970, the world's largest food aid for development program. The ingenious plan: receive dairy commodities as a gift, sell them to local dairies, and invest the funds to create the infrastructure for cooperatives to procure, process, and market milk. By the end of Operation Flood in 1996, a national milk grid connected 72,000 village cooperatives to over 300 towns, cities, and metros. Linked to markets, milk became a source of livelihood for millions of small milk producers. To add value to the surplus milk and expand markets, NDDB developed a stream of new products and process technologies. Scientists at NDDB's lab developed affordable solutions for animal health, nutrition, and breeding. Training centers were set up to meet the manpower needs of the growing cooperatives. In a little over 2 decades, Operation Flood transformed India from a milk deficit nation to the world's largest producer of milk. By 1996, the Indian economy had been liberalized. Private players were now making inroads into the dairy sector too. A new challenge was emerging. NDDB's response was Perspective Plan,
a 10-year strategy to equip cooperatives to face the future. The strategy was fourfold: strengthen business, enhance animal productivity, raise quality at all levels, and create a national information network to enable better planning and monitoring. By 2010, India's average growth rate in milk production was around 4% annually, outstripping the global average growth rate of around 2%. But the demand for milk has been increasing exponentially. To keep up with this ever-increasing demand, NDDB, with the support of the Government of India, envisioned a national dairy plan, Mission Milk, in 2012. This scientifically planned multi-state initiative with a 15-year horizon was largely funded by the International Development Association. In its first phase, NDP focused on increasing productivity through scientific breeding and nutrition, with the technologies being delivered at the farmer's doorstep. And the result has been quite outstanding. Milk production rose to a mammoth 163 million tons by 2017. And over 1.6 million milk producers across 177,000 villages have benefited from cooperatives. In addition to strengthening existing cooperatives, 5 producer companies were promoted, one each in Gujarat, Rajasthan, Punjab, Andhra Pradesh and Uttar Pradesh. Suitable interventions were made in northwest Bihar, where dairy cooperatives needed impetus. Bapu Dham Milk Producers Company was formed, and milk is being procured from Champaran to provide milk producers with direct access to markets. In an endeavor to make dairying a source of sustainable livelihood and alleviate poverty in the drought-prone regions of Vidarbha and Marathwada, NDDB, along with the government of Maharashtra, have taken up dairy development activities. To replicate the success of WAMUL under NDDB's management, the government of Assam got into an agreement with the Dairy Board for the management of IAMUL, East Assam Milk Unions Limited, and KAMUL, Kachar and Karimganj Milk Union Limited as well. At the request of the government of Jharkhand, NDDB has assisted in forming the Jharkhand Milk Federation and has commissioned a fully automated dairy plant. NDDB assisted in revitalizing dairy cooperative movement in the state. To ensure a universal level of food safety and quality, NDDB has registered a quality mark logo to be given to those dairies that adhere to prescribed guideline parameters. Promoting the use of solar energy in the dairy industry is another initiative started by NDDB. Furthermore, NDDB has partnered with the National Bee Board to explore possibilities of promoting scientific beekeeping among dairy farmers. Wholly owned subsidiaries started initially within NDDB to serve specific purposes have today evolved into significant entities on their own. Safal has been enhancing farm productivity through agronomic interventions, apart from providing market linkage for fruit and vegetable growers, ensuring remunerative prices. It has a state-of-the-art fruits and vegetables processing plant in Delhi and has recently set up a second plant in Ranchi. Apart from Delhi, Safal outlets have been set up in Odisha in collaboration with the oil marketing companies. Through all these various activities and endeavors,
NDDB's purpose and vision remain constant: to serve India's small and marginal farmers and double their income by 2022. क्या देखा एनडीडीबी के बारे में आपने? मैंने सोचा पढ़ाने से पहले एनडीडीबी मतलब क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, है ना। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का क्या क्या है अदर देन मिल्क? अब जो वीडियो में देखा, कोई भी बोल सकता है क्या? मिल्क का प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए तो उन्होंने अपना मतलब बहुत सारा प्लानिंग बनाया है, जैसे ऑपरेशन फ्लड है, बहुत जगह जो है उन्होंने फार्म प्रोड्यूसर्स कंपनी का भी डेयरी उन्होंने चालू किया है। तो उसके अलावा क्या क्या आप वीडियो में क्या क्या देखा अदर देन मिल्क? एनडीडीबी क्या कर रहा है? कोणी बोलू शकता का? सर्विसेस क्या क्या दे रहा है? सफल के बारे में बात किया ना, सफल के बारे में आपने देखा ना वीडियो, रेशमा भारती। केवल मिल्क का प्रोडक्शन के लिए मिल्क मिशन करके उन्होंने बनाया है, और शेतकरी का जो इनकम डबल करना है बाय 2022, जो बोल रहे 22 तो हो गया, बट मतलब उनका ऐसा प्रयत्न है। हनी बी का बारे में बोल रहे थे ना, मधुमक्खी का जो है ट्रेनिंग देना है, और जो शेतकरी है उनको मधुमक्खी का ट्रेनिंग देके उसको भी इनकम बढ़ा सकते हैं, और एग्रीकल्चर में भी उन्होंने अपना ये किया है। तो डेयरी के अलावा एनडीडीबी क्या है, बहुत सारा चीजें जो है यहाँ पे शेतकरी का इनकम के लिए बहुत सारा जो है काम कर रहा है। तो अभी इन डिटेल में एनडीडीबी क्या है देखेंगे। आपका देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ एनडीडीबी। एनडीडीबी का क्या फंक्शन है आप एक्सप्लेन करो। तो एक्टिविटी क्या है वो देखेंगे एनडीडीबी का। रोल ऑफ एनडीडीबी इन डेयरी कोऑपरेटिव्स। देखिए जैसे उस वीडियो में हमने देखा था कि जब अमूल बन गया तो एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी क्या किए थे कि उस आनंद विलेज में गए थे और देखा कि जो सक्सेस आनंद विलेज में जो हो रहा है डेयरी डेवलपमेंट में, तो उसको देखने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को लगा, अपना जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको लगा कि केवल आनंद ही क्यों, पूरा देश क्यों नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो सितंबर 1965 में चालू किया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ताकि जो सक्सेस देखा था कोऑपरेटिव खैरा डिस्ट्रिक्ट का आनंद विलेज का, तो उसके कारण क्या हुआ, एनडीडीबी जो है चालू हुआ। एक्टिविटी क्या है, एनडीडीबी का कार्य क्या है? एनडीडीबी क्या कर रहा है, जो गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या कर रहा है, जो डेयरी डेवलपमेंट के लिए एडवाइस देने के काम कर रहा है। उनको बोल देंगे कि क्या क्या जरूरत है, क्या डेयरी उत्पादन के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए वीडियो में ये भी बताया गया है कि जगत का जो है डेयरी का जो डेवलपमेंट हो रहा है कितना 2%, बट भारत का कितना हो रहा है 4% जो है डेयरी डेवलपमेंट का बारे में हो रहा है। और जो डेयरी प्रोजेक्ट है राज्य सरकार के ऑन बिहाफ ऑफ में एनडीडीबी ले रहा है, और टेक्निकल सर्विस दे रहा है एनडीडीबी। जो डेयरी यूनियन को जो लगने वाला है या डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो लगने वाला है, टेक्निकल सर्विसेज मतलब टेक्निकल सर्विसेज में कैसे आएगा कि चिलिंग सेंटर कैसे स्थापित करना है, और अपना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में बोला जाएगा, एनिमल हेल्थ के बारे में जो वहां पे कंसल्टेंसी दिया जाएगा। तो ये सभी जो चीजें हैं एनडीडीबी कर रहा है। और मैन पावर डेवलपमेंट सर्विसेज आपने देखा होगा अभी उस वीडियो में, जो डेयरी को लगने वाला जो लोग चाहिए उनका ट्रेनिंग देने के काम भी क्या कर रहा है, एनडीडीबी जो है कर रहा है। और बल्क प्रोक्यूरमेंट मतलब जो भी एक एजेंट जैसा काम कर रहा है, जो जैसे कहाँ कहाँ बल्क परचेज कर रहा है ये, जैसे रॉ मटेरियल है, कैटल प्लांट्स है,
ये सभी बल्क जो भी प्रोडक्ट है वो ये कर रहा है। और साथ में फॉरेन फॉर्म के साथ कोलैबोरेशन में डेयरी इक्विपमेंट बनाने का भी काम, डिजाइन एंड इक्विपमेंट बनाने का काम भी कर रहा है। और रिसर्च एंड कंसल्टेंसी के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डेयरी प्रोजेक्ट के बारे में एनडीडीबी ने क्या किया, एक फंड जो है उन्होंने कर दिया है, उन्होंने रखा है। और इंटरनेशनल लाइसेंसिंग के साथ इंडियन डेयरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल एजेंसी के साथ जो इंफॉर्मेशन जो है एक्सचेंज अदर कंट्री के साथ इंफॉर्मेशन मतलब डेयरी डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन में जो है यहाँ पे एक्सचेंज कर रहा है। और फार्मर के लिए यानी शेतकरी के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना भी काम कर, ओरिएंटेशन मतलब दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाए इसके बारे में कर रहा है। और डिफरेंट मिल्क शेयर मतलब आनंद जैसा क्या कर सकते करके कर रहा है। अभी डेयरी डेवलपमेंट के लिए एनडीडीबी में क्या हुआ, एनडीपी 1 एनडीपी 2 ऐसा हम देखते हैं। एनडीपी मतलब नेशनल डेयरी प्लान फेज 1 2 3 हम देख रहे हैं। नेशनल डेयरी जो प्लान फेज जो है ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। ये जो चालू हुआ था 2011-12 से और 18-19 तक था ये वन वाला। और पूरा इन्वेस्टमेंट जो किया गया था यहाँ पे डेयरी डेवलपमेंट के लिए जो करोड़ जो था 2242 करोड़ जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था। इसमें कंपैरिजन अगर हम कंप्राइजिंग ये देखते हैं तो ₹1584 करोड़ जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से मिला है। और 176 करोड़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है। और 282 शेयर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मतलब EIA जो है यहाँ से मिला है। और 200 करोड़ जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट जो है सब्सिडी जो दे रहा है डेयरी डेवलपमेंट के लिए, टेक्निकल एंड इम्प्लीमेंटेशन का जो सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए। और बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है उन्होंने $US में 352 मिलियन जो है क्रेडिट 2012 में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरी फिशरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इशू किया है। और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत नेशनल डेयरी प्लान, नेशनल डेयरी जो प्लान है उसके अंतर्गत जो है यहाँ पे दे रहा है। और इसमें और फंडिंग भी मिल रहा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DADF टू NDDB जो है यहाँ पे जो एलिजिबल EIAs मतलब क्या है, एलिजिबल इन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है इनके द्वारा एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी EIAs मतलब एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा। नेशनल डेयरी प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? नेशनल डेयरी प्लानिंग NDP मतलब नेशनल डेयरी प्लानिंग वन का जो है मेन जो इसका साइंटिफिकली प्लान किया गया था। क्या क्या इनका है, जो मिल्किंग एनिमल है उनका प्रोडक्टिविटी बनाना है और मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। जो डिमांड है तो डिमांड को पूरा करने के लिए मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। और मिल्क प्रोड्यूसर जो है, जो शेतकरी है, एक ऑर्गेनाइज्ड मिल्क प्रोसेसिंग सेक्टर होना चाहिए। तो इसके आधार पर है अभी भी प्रधानमंत्री जी, अब आपने देखा होगा कि डेयरी डेवलपमेंट के लिए और उनका जो है दूध संपदा योजना और मत्स्य संपदा योजना करके उन्होंने चालू किया है ताकि डेयरी डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़े और फिशरीज का भी। और साइंटिफिक सिस्टम जो प्रोसेस जो हो रहा है, टेक्निकल इनपुट दिया जा रहा है, अप्रोप्रिएट पॉलिसी और रेगुलेटरी मेजर जो है यहाँ पे लिया जा रहा है। प्रोजेक्ट एरिया कहाँ है नेशनल डेयरी प्लानिंग का?
18 मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट उन्होंने लिया था, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र भी है, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। उस वीडियो में झारखंड के बारे में बोला गया था। तो 90% ऑफ दी भारत का मिल्क प्रोडक्शन जो है, 90% का जो भी मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, ये नेशनल डेयरी प्लान ए के अंतर्गत क्या हुआ है, कवरेज हुआ है। ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ये स्कीम जो है सबको मिलना चाहिए, ये कोशिश है। यहाँ तक आपको समझ में आया? इसके साथ आपका चैप्टर नंबर कौन सा होता है? 6 कंप्लीट होता है। किसी को कुछ पूछना है? किसी का कुछ पूछना है क्या? एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग डेयरी डेवलपमेंट? बोलिए, कोणाला विचारायचे का? किसी को कुछ प्रश्न है? मॅडम आता ते गोकुळच्या गुजरात मधील जे हे ह्याचे दूध आहे ना अमोलचे, त्याच्याबद्दल माहिती दिली. तशीच माहिती आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा गोकुळ आणि आनंद सारखे दूध डेअरी आहे, त्याची बी माहिती देण्यात यावी. आपल्याला माहिती पाहिजे का? मी आता देत आहे. म्हणजे अदर देन अमूल आपको गोकुल का माहिती पाहिजे आणि अजून काय पाहिजे? महाराष्ट्रातल्या दूध डेअरींची माहिती. ओके, मी आता देते. हा, गोकुल डेयरी जो है कोल्हापुर जिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था है। ओके, गोकुल मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, इसका वेबसाइट के द्वारा हम देखेंगे कि कोल्हापुर जिला डेयरी उत्पादन क्या क्या कर रहा है। सबको दिख रहा है ये? देखिए यहाँ पे गोकुल कोल्हापुर जिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था है। और ये कब चालू हुआ? अगर हम देखते हैं कि 1963 में, देखिए एनडीडीबी कब चालू हुआ था? 1965 में, बट कोल्हापुर जिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था जो है 1963 में चालू हुआ है। और इसका मेन अगर आप देखते हैं कि मिल्क प्रोक्योरमेंट में एनिमल हेल्थ, अगर देखते हैं गोकुल क्या कर रहा है, 17 लाख पर लीटर डे, डेयरी प्लांट में 17 लाख पर डे का जो है कलेक्शन होता है यहाँ पे। और 8 लाख लीटर कैपेसिटी मॉडर्न पैकिंग यूनिट है नवी मुंबई में। और इनका मिल्क शेड है, 46 मोबाइल वेटरनरी रूट्स है, क्लस्टर्स है। और इसका अगर देखेंगे कि अलग अलग तालुका में इनका ये है। ये गोकुल को क्या क्या अवार्ड मिला है अगर देखें, सहकार भूषण अवार्ड मिला है, एनडीडीबी एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, डेयरी प्लांट्स जो है फूड सेफ्टी के बारे में, कैटल फीड है, बहुत सारा स्कीम जो विमेन डेयरी कोऑपरेटिव लीडरशिप प्रोग्राम उन्होंने किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बायगा स्कीम भी उन्होंने किया है। इनका प्रोडक्ट क्या है अगर देखते हैं, प्रोडक्ट इनका अलग अलग प्रोडक्ट है, जैसे फ्लेवर्ड मिल्क है, टोन मिल्क है, देसी बटर है, गोकुल लस्सी है, गोकुल पनीर है, गोकुल दही है, गोकुल टेबल बटर है, गोकुल श्रीखंड है, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। गोकुल मिल्क के अलावा गोकुल का जो है
अलग अलग जो है बटर, ये श्रीखंड, ये सभी जो प्रोडक्ट ये कर रहे हैं। और सर्विसेस मिल्क प्रोडक्ट कर रहा है, और फॉडर डेवलपमेंट में कर रहा है, कैटल प्लांट है इनका, और मिल्क टेस्टर भी है। प्रोक्योरमेंट अलग अलग जो जिले में क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोक्योरमेंट जो है मतलब शेतकरी से जो प्रोक्योरमेंट जो है ले रहा है। मार्केटिंग का भी इनका ये है, मार्केटिंग भी अलग अलग मार्केटिंग इनका है। अभी एक प्रेजेंट सेटअप अगर देखते हैं गोकुल का, एक ही मिनट में दिखा। देखिए प्रेजेंट सेटअप मतलब आज के दिन गोकुल का प्रेजेंट सेटअप अगर देखते हैं तो 5 लाख लीटर्स अ डे रॉ मिल्क इनको मिलता है, एंड 12 लाख जो है चिल्ड पर डे का है, ये चिल्ड है। प्रोसेसिंग कैपेसिटी अगर हम देखते हैं तो 15 to 17 लीटर डे का जो है। पाउडर मैन्युफैक्चरिंग 52 मेट्रिक टन डे है, एंड देसी बटर जो हो रहा है 40 मेट्रिक टन, टॉप चूरन हुए 80 मेट्रिक टन है। घी का प्रोडक्शन हो रहा है, ये डे का पर डे का हो रहा है 6 मेट्रिक टन। पैकेजिंग का अगर लेते हैं तो मिल्क पैकेजिंग 2.5 लाख लीटर पर डे हो रहा है। पाउडर जो पाउचेस जो रहता है 10 मेट्रिक टन का हो रहा है। घी पैकिंग जो एवरीडे का 4.5 है। टेबल बटर का 500 ग्राम का 3 मेट्रिक टन एंड 100 ग्राम का 1 मेट्रिक टन है। स्टोरेज कैपेसिटी घी पाउडर वगैरह हम देख रहे हैं। देखिए टोटल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर है, मैं बता रही थी ना, ऑपरेशन फ्लड दूध महापूर योजना जो 1 and 2 86 78 to 86 12 करोड़ था। उसके बाद 3 में जो है 95 to 98 33 करोड़ था। न्यू डेयरी एक्सपेंशन एनडीपी में बोल रहे थे ना, न्यू डेयरी एक्सपेंशन के अंतर्गत 100.15 करोड़ जो है इनका ये है। और मार्केटिंग जो है इनका अलग अलग जो है मार्केटिंग है, मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पे अलग अलग एरिया का मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट आप देख रहे होंगे। और अभी मैं एक आप बोल रहे थे ना कि जैसे आप अमूल का बारे में जो बोल रहे हैं, हमारा जो गोकुल का बारे में भी बताइए। एक वीडियो जो है मैं आपको, एक ही मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये नया है, मैं दिखाती हूँ। जागतिक अन्न सुरक्षा के बारे में उन्होंने अलग अलग ये किया है, वीडियोस बनाया है। मतलब गोकुल क्या क्या कर रहा है, अलग अलग स्कीम यहाँ पे देख रहे होंगे आप। गोकुल अलग अलग दूध उपयोगी आयुर्वेदिक उपचार पद्धति करके वो दिखा रहा है। आप अगर गोकुल का वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें आप देखिए बहुत सारा जो है उनका, देखिए गोकुल सेंद्रिय खतांची फायदे। गोकुल अपना, जैसे मैं एनडीडीबी का बता रही थी ना, वैसे गोकुल का भी अपना। गोकुळ संघ आता शेणाच्या स्लरी पासून एक मिनट मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। दर्जेदार सुधन सेंद्रिय खते तयार करत आहे। गोकुळची सुधन सेंद्रिय खते ज्यांनी ज्यांनी आपल्या शेतात वापरली, पाहूया त्यांच्या यशस्वी प्रतिक्रिया। नमस्कार, मी विनायक पांडुरंग परोळेकर, पिंपळगाव तालुका बुद्रुकगड जिल्हा कोल्हापूर। गोकुळ दूध संघामार्फत सेंद्रिय शेतीची जी खतं उत्पादित करण्यात येतात त्यामध्ये आम्ही भात पिकासाठी गोकुळचं सुधन या नावाचं असं खत वापरलं होतं। पूर्वीपासूनच सेंद्रिय शेतीची काहीतरी आपण आपल्याकडं एखादी ठेव असावी अशी
खूप इच्छा मनामध्ये होती. त्याच्यासाठी मी सेंद्रिय शेतीचं म्हणून ह्या खताची निवड केली आणि याचा रिझल्ट असा आला की आम्ही जे पूर्वीच्या ह्याच्यामध्ये रासायनिक खतं वापरून जे पीक काढत होतो त्याच्यापेक्षा ह्या खतामध्ये आपल्याला चांगल्या पद्धतीचं उत्पादन दिसून आलं. हे एक फायदा त्याच्यामध्ये दिसून आला. आणि त्याच्याबरोबर आम्ही भात पिकासाठी रत्नागिरी 8 आणि रत्नागिरी 6 अशा 2 बियाण्यांची निवड वेगवेगळ्या पद्धतीने केली होती. रत्नागिरी 8 होतं ते साधारणपणे 120 दिवसाचं भात पीक होतं आणि रत्नागिरी 6 100 दिवसाचं भात पीक होतं. तर दोन्ही पण टप्प्यावरच्या भाताच्या मध्ये मला यामध्ये चांगला रिझल्ट दिसून आलेला आहे. लवकर मुळाची वाढ होते. त्याच्याबरोबर आपण जे रासायनिक खत वापरून ज्या पद्धतीने उत्पादन काढतो त्याच्यापेक्षा एक 50 ते 60 किलो साधारणपणे 10 गुंठ्याला मला हे आलेलं आहे, जास्त उत्पादन आलेलं ह्याच्यामध्ये दिसून आलं. आणि खतांच्यापासून होणारे जे समाधान हे ह्या पिकामध्ये मला दिसून आलेलं आहे. आणि मी गोकुळच्या सर्व टीमला ह्या अभिजित बाजीराव तांबेकर अशा पद्धतीची बरीच अशी आंतरपिकं सुद्धा घेतलेली आहेत. हा माझा जर प्लॉट बघितला तर एकूण 12 गुंठ्याचा आहे. मी याच्यासाठी जी खतं वापरलेली आहेत ती गोकुळमधून मिळणारी सुदन प्रोडक्ट वापरलेले आहेत. हा जो कॅन दिसतो आहे तर हा रूट गार्डच आहे. हा पहिल्या त्याच्यानंतर जो आहे या बॉटलला जातो. या जो भाजीपाला वगैरे जो मार्केटमध्ये जातो तो एकदा जर घेऊन गेली तर पुन्हा पुन्हा आपल्या मालाच्या ठिकाणी येऊन खरेदी करून घेऊन जातात. मी गोकुळ सुदन सेंद्रिय खताचा वापर केलेला आहे. पासून मालांचा दर जर बघितला असा तर 1400 ते 1500 रुपयाला पीक अतिशय आम्ही वापर केलेला आहे. सेंद्रिय शेतीची फार मला आवड आहे सुरुवातीपासून. आणि सेंद्रिय शेती त्या भाताला पासून तयार केलेलं हे सेंद्रिय खत फार सुंदर आहे आणि आमच्या पिकाला चांगल्या प्रतीचं हे आलं. मी ह्याच्या अगोदर देखील मी सेंद्रिय करत होतो. जास्तीत जास्त लोकांनी घालून त्याचा वापर करावा आणि जरूर करावा. अशाच माहितीसाठी गोकुळ मिल्क ऑफिस ऐसे ही कातरेज डेयरी है. ओके, जैसे आप पूछ रहे थे कि गोकुल का अगर आप वेबसाइट में जाएंगे ना, बहुत सारा चीजें वहां पे आप देख सकते हैं कि गोकुल केवल दूध उत्पादन नहीं कर रहा है, साथ में क्या है, दूध का जो मार्केटिंग नहीं है उसके साथ सेंद्रीय खेती है और भी बहुत सारा जो है वो गोकुल कर रहा है, आप देख सकते हो. तो यहाँ अपना 6 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है. किसी का और भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग डेयरी आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू कर रही हूँ आज, क्योंकि यही हफ्ता अपने पास 7th चैप्टर है अपने पास. अदर टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में अदर टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है. यहाँ पे कौन कौन सा सोसाइटी आएगा? एक है लेबर कोऑपरेटिव, फिशरीज कोऑपरेटिव, हाउसिंग कोऑपरेटिव, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन हॉस्पिटल कोऑपरेटिव, टूरिज्म कोऑपरेटिव, ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है. तो उन सब सोसाइटी को हम एक एक देखेंगे क्या है ये सोसाइटी. अभी लेबर कोऑपरेटिव, लेबर कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो लेबर्स है वही यहाँ पे मालिक है. वो सभी लेबर मिलके क्या किया, अपना वर्कर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो सभी मिलके जो है अपना खुद का जो है सोसाइटी चालू किया है. तो लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर हु एसोसिएट टू वर्क टुगेदर फॉर जॉइंट रिवॉर्ड. मतलब ये है कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर थे, जाने डिफरेंट डिफरेंट जगह में जाके कॉन्ट्रैक्ट लेबरिंग कर रहे थे, उनको लगा कि अपना खुद का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगा तो और भी अच्छा होगा करके उन्होंने यहाँ पे लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी को चालू किया. और यहाँ पे ये लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी का खासियत क्या है मैं बताना चाहूंगी आपको कि खुद काम करते हैं और खुद मालिक भी है. एक चीज है, इसका चीफ कैरेक्टरिस्टिक अगर देखते हैं तो वो अपना साथीदार, मतलब काम करने के लिए कौन साथीदार है वो खुद चॉइस करेंगे, अपना लीडर को खुद चॉइस करते हैं. और कलेक्टिव लेबर रहेगा. जैसे एक म्युनिसिपलिटी काम है तो वहां पे मैं आपको बताना चाहूंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, और इवन स्टेट गवर्नमेंट भी, जब भी कुछ बिल्डिंग बनने का काम जब रहेगा, कंस्ट्रक्शन का काम जो रहेगा, तो उस वक्त मेन जो है इम्पोर्टेंस दिया जाएगा लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी को.
आज लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत में बहुत सक्सेसफुल है, और साथ में हमारा इधर और भी है लेबर कोऑपरेटिव में फॉरेस्ट लेबर कोऑपरेटिव्स भी यहाँ पे है। फॉरेस्ट लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हम देखते हैं। और लेबर कोऑपरेटिव जो है भारत में कहाँ पे यूजुअली ज्यादा पॉपुलैरिटी अगर हम देखते हैं तो महाराष्ट्र और पंजाब में जो है बहुत ही सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ लेबर कोऑपरेटिव अगर देखते हैं तो स्टेट लेवल फेडरेशन ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी और स्टेट लेवल फेडरेशन ऑफ फॉरेस्ट लेबर कोऑपरेटिव्स है। पूरा भारत में 12 जो है स्टेट लेवल फेडरेशन ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी है, और फॉरेस्ट लेबर का स्टेट लेवल फेडरेशन 4 ही है। और डिस्ट्रिक्ट लेबर कोऑपरेटिव जो है फेडरेशन 202 है, और फॉरेस्ट लेबर का 13 है। प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर सोसाइटी 39,318 है, और प्राइमरी फॉरेस्ट लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी 2,723 है। अगर मेंबरशिप अगर लेते हैं तो 2.27 मिलियन जो स्टेट लेवल मतलब अपना लेबर कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी का, और फॉरेस्ट लेबर कोऑपरेटिव का है 0.318 मिलियन हम लोग यहाँ पे मेंबरशिप देख रहे हैं। नेशनल लेबर कोऑपरेटिव फेडरेशन इसका काम क्या है? नेशनल लेवल कोऑपरेटिव फेडरेशन NLCF जो है, नेशनल लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर रहा है? जो प्रमोशन देना और डेवलपमेंट करना जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी और फॉरेस्ट लेबर कोऑपरेटिव है, और साथ में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल फेडरेशन को प्रमोट करने के काम कर रहा है। और पब्लिकेशन मतलब अपना जैसे पीरियोडिकल जर्नल्स है, इंफॉर्मेशन है, उनका पास अपना लेबर कोऑपरेटिव लाइब्रेरी, एजुकेशन ट्रेनिंग देने का काम है, सेमिनार करने का, कॉन्फ्रेंसेस करने का, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने का, ताकि लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टेट लेवल और अदर लेवल पे आगे लेके जाने के लिए। और जो लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी को लगने वाला जैसे मशीनरी है, टूल्स है, एक्सेसरी है, उन सबको सप्लाई करने के काम जो है ये नेशनल लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रहा है। और टेक्नोलॉजी जो भी नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उसको अपना मेंबर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी ये है लेबर कोऑपरेटिव मूवमेंट के वेरियस लेवल पे वो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और एक नोडल एजेंसी जैसा लेबर नेशनल लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऑल इंडिया एक एजेंसी है, तो अपना मेंबर इंस्टीट्यूशन का रिप्रेजेंटेटिव करके काम कर रहा है। स्टेट लेवल फेडरेशन क्या कम कर रहा है यहाँ पे? स्टेट लेवल फेडरेशन और टेक्निकल गाइडेंस जो भी तांत्रिक ज्ञान चाहिए लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी को वो देने के काम कर रहा है। क्रेडिट फैसिलिटी मतलब जो लोन वगैरह चाहिए तो प्राइमरी सोसाइटी को दे रहा है, पब्लिकेशन का काम जो है कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन है जो प्राइमरी लेवल सोसाइटी को समन्वय कर रहा है। और जब वर्क मिलता है तो मतलब वर्क कहाँ से मिलेगा? जैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वर्क रहेगा, या गवर्नमेंट ऑफ जो भी स्टेट का जो भी गवर्नमेंट का काम रहेगा तो वो लेगा और अपना मेंबर सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। और साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन मशीनरी को सप्लाई करने के काम जो है, टेक्निकल गाइडेंस का देने के काम जो है, और गवर्नमेंट और अदर रिवार्डिंग एजेंसी के साथ काम जो है, अवार्डिंग एजेंसी के साथ काम कर रहा है। प्राइमरी लेवल सोसाइटी क्या कर रहा है? जो प्राइमरी लेवल सोसाइटी मतलब क्या होगा? जो मेंबर लेबर, यहाँ पे मेंबर कौन है? लेबरर है। और ये लेबर क्या कर रहा है? एकत्रित आके अपना सोसाइटी का स्थापन किया है, तो हर दिन उनको काम मिलना चाहिए, और मेंबर का इकोनॉमिकली इंटरेस्ट जो बढ़ोतरी होना चाहिए उसके लिए वो देख रहा है। मतलब वर्क लेके उनको डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। मतलब हर एक व्यक्ति जो भी यहाँ पे मेंबर है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, तो वो यानी एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर सोसाइटी कर रहा है। एंड टूल एंड इक्विपमेंट एंड अदर मशीनरी को एक्वायर कर रहा है। फ्यूचर अप्रोच क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन जो है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन नहीं है तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन का स्थापित करने का काम चल रहा है। लेबर एंड फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी को
ज्यादा से ज्यादा स्पेशली नॉर्थ रीजन में स्थापित करने का काम जो चल रहा है। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब उनको वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने के काम, जैसे नोडल एजेंसी के साथ अनस्किल्ड को स्किल लेबर काम करने का कर रहा है। और फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत मिलता है। और आर्थिक जो हित के लिए यानी अपना मेंबर का आर्थिक हित के लिए बहुत सारा मदद कर रहा है। जैसे नेशनल फेडरेशन क्या कर रहा है, एक नेशनल लेवल का काम लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल में वो इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है। नया नया एरिया कहाँ पे है जहाँ पे ये स्टेट लेवल फेडरेशन का मतलब अपना लेबर कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी कर रहा है। जैसे न्यू डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, न्यू स्टेट बन रहा है, तो वहां पे नया जो स्थापन करने के लिए नेशनल लेबर कोऑपरेटिव फेडरेशन के द्वारा उनको रिसोर्स सेंटर करके मिलेगा। और जो ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी केवल बिल्डिंग का बनने वाला नहीं है, इनके अंदर कौन कौन आएगा लेबर में, बार्बर्स आएंगे, वाशरमैन आएंगे, कॉबलर आएगा, ब्लैक स्मिथ आएगा, हॉकर्स आएगा, ये सभी लेबर कोऑपरेटिव में आ रहा है। और लेबर कोऑपरेटिव मूवमेंट को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देने का और महिला और युवक को ज्यादा पॉपुलैरिटी करने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। अभी फॉरेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? फॉरेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी देखिए, भारत में फॉरेस्ट मतलब जंगल जो है बहुत जगह है और यहाँ पे बहुत सारा जंगल उत्पादन भी होता है। और उसका मतलब अपना जंगल को डेवलपमेंट करना जरूरी है। और यहाँ पे जनरली जो है फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर को अवॉइड करना है, तो इसलिए क्या करते हैं कि फॉरेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित किया है। और मैक्सिमम नंबर अगर देखते 78 में मैक्सिमम नंबर अगर हम देखते हैं तो महाराष्ट्र में ज्यादा ये फॉरेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी थे। और उसके बाद जो हम देखते हैं बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड मणिपुर। और स्टेट गवर्नमेंट क्या किया है अपने लिए, मतलब देखिए स्टेट गवर्नमेंट एक पॉलिसी कौन सा भी राज्य में नहीं है, बट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना दिया है लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, फॉरेस्ट लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, जो बैकवर्ड एरिया में है और जहाँ पे जनरली आदिवासी जो जहाँ पे है वहां पे ये है। मतलब यहाँ पे जो भी काम होगा वो डायरेक्टली होगा, थ्रू कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल नहीं रहेगा, मिडलमैन भी बिल्कुल नहीं रहेगा, ऐसा एक डिसीजन लिया है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोल रहे हैं। मेंबरशिप का सोसाइटी के इंक्रीज करने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे सोशल वर्कर शुड नॉट बी, मतलब जब भी मेंबरशिप रहेगा ओनली फॉरेस्ट वर्कर भी वहां पे होना चाहिए। और वेलफेयर एक्टिविटी लेना के लिए वर्क साइट में जहाँ पे काम चलता है वहां पे क्या क्या वेलफेयर एक्टिविटी हो सकता है, जैसे पीने का पानी का व्यवस्था, फर्स्ट एड, एजुकेशन एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटी, जैसे आदिवासी स्कूल वगैरह आप देखते हैं ना उसी में आ जाता है। और नेट प्रॉफिट जो रहेगा सोसाइटी को क्या करना पड़ेगा, अपना जो मेंबर का वेलफेयर के लिए उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फॉरेस्ट कम लेबर कम कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी जो है चालू हुआ है यहाँ पे, तो इसके साथ जो है आपका फॉरेस्ट लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी कंप्लीट होता है। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है क्या? एनी क्वेश्चंस बताइए। यहाँ पे दो सोसाइटी हमने देखा, एक है फॉरेस्ट लेबर सोसाइटी एंड लेबर कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी। आपको मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा आपको। अदर टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको जो है इसमें आएगा, शॉर्ट नोट्स के लिए आ जाता है। ओके, मैं अभी आपको नेशनल लेवल फेडरेशन का एक वेबसाइट में आपको दिखाती हूँ, देख लीजिए।
दिख रहा है ना आपको? देखिए आजादी का अमृत महोत्सव है, नेशनल लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी है यहाँ पे। बहुत सारा एक्टिविटी जो है ये ले रहे हैं, क्या क्या है करके देखेंगे। जैसे मैंने अभी बताया था वही फंक्शन जो है या आप यहाँ पे देख रहे हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का आधार पर जो है यहाँ पे ये है। देन वेलफेयर एक्टिविटी, स्किल अपग्रेडेशन का ट्रेनिंग दे रहे हैं, हेल्थ कैंप्स वगैरह करवा रहे हैं, ठीक है। फीमेल मेल मेंबर को भी यहाँ पे जो है दे रहे हैं। यहाँ पे अगर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में देखिए 435 फीमेल मेंबर, 746 मेल मेंबर को जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे। स्किल अपग्रेडेशन का प्रोग्राम जो है ये कर रहे हैं। इनका इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी है, जो आईसी के साथ इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है रखा है। मेंबरशिप देखेंगे तो मेंबरशिप इनका जिसको फॉर्म चाहिए वो मेंबर जो है यहाँ पे बन सकते हैं। पब्लिकेशन देखिए, इनका पब्लिकेशन देखिए यहाँ पे बुकलेट जो है, कंसेशन फैसिलिटी, क्वार्टरली मैगजीन इनका हो रहा है। मैनुअल फॉर मैनेजर जो है ये दिखा है। अभी बहुत सारा केस स्टडी भी यहाँ पे है। तो ये आपका जो अदर टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में आज हमने देखा लेबर कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी एंड फॉरेस्ट लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो फॉरेस्ट लेबर के बारे में और एक मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी। ट्राइफेड के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी। ट्राइफेड क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है इनका। बहुत सारा जो है ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत सारा जो है योजनाएं जो है बनाया है। पूना में भी अपना सेंटर है, वहां पे आप देख सकते हो कि बहुत सारा चीजें जो है मिलता है। ऑनलाइन पोर्टल भी है इनका, तो उसके द्वारा भी आप ले सकते हो। और मैं यहाँ पे दिखाती हूँ ट्राइबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है किस किस के साथ जो है टाइप किया है। देखिए यहाँ पे फ्लिपकार्ट है ट्राइब्स इंडिया के साथ, मतलब ट्राइबल का जो भी वस्तु खरीदना करते हो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा है। ट्राइबल का जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अगर आप देखते हैं मतलब रिटेल मार्केटिंग फॉर लाइवलीहुड डेवलपमेंट के अंतर्गत 3,27,000 आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना। 3,27,000 आर्टिजन फैमिली यहाँ पे है। 1000 प्रोडक्ट है। रिटेल आउटलेट जो है इनका 119 है। 44 करोड़ का सेल जो है मिला है इनका हो रहा है। ट्राइबल का जो भी ये है मतलब प्रोडक्ट को ये करने के लिए कर रहे हैं। वन धन योजना करके इन्होंने ये किया है, उसके अंतर्गत भी यहाँ पे हो रहा है। एरिया फोकस है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन जो है हुआ है।
वन धन योजना के अंतर्गत 9.63 लाख ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है यहाँ पे गैदर हुआ है। और स्टेट वाइज इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस आप देखते होंगे अलग अलग, जैसे अभी हमारा एक मिनट, अभी अगर महाराष्ट्र का देखना चाहिए तो देखते हैं महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया। मध्य प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हाँ देखिए महाराष्ट्र में ये जो क्लस्टर्स जो है अपना वन धन योजना का जो क्लस्टर्स है, वन धन योजना का क्लस्टर कितना है 264 और इसका जो है 369 और फॉरेस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट गैदर्स जो है 79,000। डिस्ट्रिक्ट कितना कवर हुआ है 19 3,960 लैक्स जो है महाराष्ट्र को मिला है। क्या क्या प्रोडक्ट जो है बना रहा है, ये पुराना ही दिया है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी यहाँ पे देखिए नासिक का जो है शबरी आदिवासी विकास महामंडल, आदिवासी विकास महामंडल के अंतर्गत जो है इनका हो रहा है। और रीजनल ऑफिस महाराष्ट्र का में है, आरओ ऑफिस का भी नंबर दिया है। तो अलग अलग जो राज्य में जो है ऑनलाइन, पुणे में भी फ्रेंचाइजी है और महाराष्ट्र का पुणे, मुंबई, इसमें आप देख रहे हैं उनका आउटलेट्स भी यहाँ पे देखा है। और अगर हम देखिए यहाँ पे मैं आपको ट्राइब्स इंडिया उनका आउटलेट आप देखते होंगे। ट्राइब्स का जो अलग अलग आउटलेट्स है इनका, उस आउटलेट के द्वारा सेल वगैरह किया जाता है। तो ये देखिए आउटलेट्स का, ट्राइब्स का आउटलेट जो है ट्राइबल फेडरेशन ऑफ ये जो है मुंबई का है। एक है इनॉग्रेशन वगैरह आप देख रहे होंगे। यानी जो भी ट्राइबल प्रोड्यूस होता है उनका मार्केटिंग करने के काम जो है ट्राइबल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो ट्राइफेड है, वो कोऑपरेटिव जो है काम कर रहा है। अलग अलग राज्यों में टोटल 19 जो जिले अपना उसके आधार पर ये कर रहे हैं। बहुत सारा योजना भी है। रिटेल 119 रिटेल आउटलेट है, अमेजोन जेम पोर्टल में है और फ्लिपकार्ट में भी ये कर रहे हैं। ओके, तो किसी को कुछ पूछना है